Okay, guys. Today we'll start Essay 3, Structure Analysis 3 for internal hinge beam. Okay, internal hinge beam. Analysis of beam. By direct stiffness method. Direct stiffness method. Or stiffness, simply it is stiffness method भी आप लिख सकते हैं. Okay. 1 minute. What is DOK? What is DOK? This is DOK. What is DOK? Force. Yes, obviously, but which are the four? Theta left, theta right, theta C, del YC, Yes, and right. theta D. Theta D. Okay. So firstly, we written del y c, del y c. Theta c left, theta c right, theta c left, theta c right, and theta d. That is 4. DOK. Okay, 4. Now, अभी 4x4 मैट्रिक्स बनने वाला है, ये तो 100% गारंटी है. Okay. So next is step number 1. Step number 2. Member stiffness matrix. पहला पेज आप डायग्राम के लिए छोड़ देना ऑलवेज. ओके, एग्जाम में भी हाफ पेज छोड़ना. आपकी बड़ी ये रहती है आंसर शीट, तो हाफ पेज छोड़ना. हाफ पेज के नीचे से वीडियो के और ये चालू कर देना. हाफ पेज अपने को लगता है ऐसा बीबीएमबी के लिए. फटाफट करने का. व्हाट इज मेंबर LEI, member LEI, 12 EI upon L cube, 6 EI upon L square,
4EI upon L 2EI upon L. Number what is AC? CD and DF. These are the member. A to C क्यों पकड़ा मैंने? यहाँ पे EI भी चेंज है और इंटरनल हिंज भी. अब जहाँ पे इंटरनल हिंज है वो अलग अलग मेंबर हो जाते हैं. ये तो सीरीज की बात है. ओके. सो इंटरनल हिंज है तो AC मेंबर अलग हो गया और CD मेंबर अलग हो गया. ओके. ये यानी इंटरनल हिंज है. और दूसरा भी एक कारण है कि AC का जो भी EI है वो कितना है? 1 EI है और CD का 2 EI है. That's why again a difference. Again different. So, next it is L. It is L. What is L? L it is 3, 2, and 4. 3, 2, 4. What is here? 1, 2, and 1. What are the stiffnesses? Please calculate the stiffnesses. Please calculate the stiffness. इतना टाइम मत लगा. फटाफट फटाफट कर दो. .44. Yes, 0.44. 0.67. 0.67. 667 भी बोल सकते हो. 67 भी बोल सकते हो. Next. 1.33. 1.33 and 0.67. बोर्ड क्लियर है ना? नहीं कोई छोटा बड़ा ऐसे कुछ नहीं दिख रहा ना आपको? कौन सा एक छोटा है कि बोर्ड? नहीं सर वो ठीक है. ओके. बैटरी क्लोज हो सकते हैं. आप देखो तुम लोग पे हो जाए. तुम्हें बाकी कार्ड बता दो हम बैटरी नहीं. Now it's clear. यस. आवाज बरोबर नहीं है सर. ओके.
हेलो, अभी ठीक है क्या? हो सर। ओके। What are the values, guys? Next values. 3342 3, 3, 4. Okay. Now this 0.1875 0.1875. Okay. 0.375 1.5. 1 1 and 0.5. Okay. Stiffnesses. अब स्टिफनेसेस कैसे लिखते हैं ये तो आपको बताने की जरूरत मुझे नहीं है. ओके. पहला नंबर के ए बी ई आर बाहर ले रहा हूँ. 0.44, 0.67, 0.67, 1.33 4 year by minus 0.44, 0.67, 0.67 and 0.67. Okay. So next it is minus 0.44, minus 0.67, 0.67 and again 0.67. This one is ये जैसे कि वैसे ये दो साइन चेंज सिर्फ और सिर्फ 0.44 minus 0.67 minus 0.67 and 1.33. So this is del y A, theta A, del y C, theta C left, theta C left, del y A, theta E, del y C, theta C left. Okay. Next is K B, sorry, that is A to C, and that is C to D. CD having no load, but only 2 meter span and having 2 EI. Okay, स्टीफल भी है, लोड भी नहीं, लेकिन स्टीफर है. ओके. EI बाहर. So that's why single values 3, 3, 3, 4, minus 3, minus 3, 3, 2, minus 3, minus 3, 3, 2. And the next is ये जैसे कि वैसी 3, minus 3, minus 3, 4. Last this one K D F. EI बाहर. यहाँ पर भी आपको लिखना पड़ेगा del y C, theta C right, del y B, theta I. Same here. Del y C, theta C right, del y D, theta D. Next it is. Sorry. 0.187
0.187 ये नहीं हुआ यार, ये बड़ा मैट्रिक्स है। E का 0.1875 0.375 minus 0.1875 minus 0.375 0.375 1.5 minus 0.187 0.375 0.375 minus में नहीं है 0.5 0.185 minus 0.375 minus 0.375 del by d theta d del by c theta sorry del by theta del by d theta del by c sorry theta. Okay, now third step. Step number 3 is global stiffness matrix. Global stiffness matrix. As always. EM. Now it is 4/4. Okay, now it is 4/4. Del by C, theta C left, theta C right, and theta D. Catch the Kuningar, guys. Kuningar stiffness इसको catch करो यहाँ पे. Okay. So what is the first Kuningar? Del by C 0.44 plus again del by C आएगा 3. यहाँ से del by C plus 3. Okay. Then del by C left only यहाँ पे है. So that del by C left यानी theta C left में del by C theta C left del by C के रो में theta C left minus 0.67. अब del by C के रो में theta C right del by C के रो में theta C right 3. del by C के रो में theta D yes theta C है ये theta D है. Okay, change this del by C के रो में theta D है ना वैल्यू है. which are the value it is 3. okay, कौन सा del by C का रो del by D का कॉलम में वैल्यू इट इज 3 वैल्यू. ओके समझा क्या? सीधे सिंपल है कैचिंग द गुनेगार. ओके नेक्स्ट अभी del by C हो गया खत्म हो गया. अभी थीटा सी लेफ्ट ओनली AC मेंबर में ही दिखेगा. सो थीटा सी लेफ्ट में del by C आप बिंदास लिख सकते हैं. मैं बोल रहा इधर से इधर सीधा कॉपी पेस्ट ऊपर से ये लेके जाना लगे तो वो बेटर रहेगा.
ओके, सो आप बिंदास माइनस लिख सकते हैं, माइनस 0.67, और यहाँ पे देख भी सकते हैं डेल वाई सी आपका, सॉरी जो रो है थीटा सी लेफ्ट है, थीटा सी लेफ्ट में डेल वाई सी वैल्यू वैल्यू दिस माइनस 0.67 एंड डेल वाई सी 1.33, ये एक ही वैल्यू रहेंगे। डेल वाई सॉरी थीटा सी लेफ्ट, थीटा सी लेफ्ट, लेफ्ट साइड वाली वैल्यू 1.2, राइट वाली वैल्यू नहीं रहेंगी क्योंकि वो अलग है, थीटा अलग है, दैट्स ऑल, टेक इट एट 0। क्यों अलग है? राइट वाला रोटेशन अलग, इंटरवल मींस का लेफ्ट वाला रोटेशन अलग, तो राइट वाला लेफ्ट वाले में नहीं घुसेगा और लेफ्ट वाला राइट वाले में नहीं घुसेगा, सीधी सीधी बात है। ओके, सो इसीलिए क्या है कि लेफ्ट वाला राइट वाले में नहीं घुसेगा और राइट वाला लेफ्ट वाले में नहीं घुसेगा। जब हम लेफ्ट वाला कर रहे हैं तो राइट वाला 0 रहेगा, और जब राइट वाला करेंगे तो लेफ्ट वाला 0 रहेगा। ओके, ऐसे ही अभी आप कॉपी पेस्ट मार सकते हैं। ओके, नेक्स्ट थीटा सी लेफ्ट में थीटा डी आ रहा, क्या नहीं आ रहा, तो ये भी 0। लेफ्ट वाले पार्ट में, लेफ्ट वाला थीटा सी लेफ्ट में थीटा डी आ रहा, क्या कहीं नहीं आ रहा। हाँ, राइट वाले थीटा सी राइट में थीटा डी आ रहा है, वो लिखेंगे आप। ओके, नेक्स्ट थीटा सी राइट नाउ। अब थीटा सी राइट में आप थीटा सी राइट ही लिखता ना, क्योंकि ये आपको पता है कि डायगोनल के ऊपर वाले और नीचे वाले सेम रहते हैं, दैट्स व्हाई। ओके, सो थीटा सी राइट गाइस, व्हाट आर द थीटा सी राइट नाउ? theta c right and theta c right, theta c right, theta c right, that is 4 value, 4 value, it is 4. Okay, then theta c right theta d, theta c right theta d, that is 2, that is 2. Now theta d theta d, theta d theta d, it is 4, and again theta d it is 1, 4 plus 1 5. Okay, अगेन मैं बता देता हूं आपको कौन सा वैल्यू, ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू, थीटा डी। ओके, दैट्स व्हाई डायरेक्टली वी रिटर्न एज 5 और 4 plus 1 5। ओके, यहाँ पे आप 3.44 भी आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। अब इसके ऊपर का और नीचे का सेम रहता है, इसलिए आप डायरेक्टली टाइम बचाते हुए कर सकते हो, क्योंकि मैंने अभी यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दे दिया। ओके, सो जैसी ये रो वैसी ही ये रो बनेगा, माइनस चलो 3 3। ओके, देन ये रो वैसी ही ये रो रहेगा, तो अगेन 0 0, ये रो वैसी ही ये रो रहेगा। अभी क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ 2 बचा। दिस रो इज इक्वल्स टू दिस कॉलम, दिस रो इज इक्वल्स टू दिस कॉलम, दिस रो इज इक्वल्स टू दिस कॉलम। ओके, ऐसे भी आप कर सकते हैं अगर आपको कॉपी पेस्ट करने में दिक्कत आ रही है तो। ओके, this is our global stiffness matrix, Panam global stiffness matrix. We move to the load matrix. Okay, can I reach this part? Oh, sure. Okay. No load matrix. Load vector or matrix. M dash external. R dash internal और मेंबर। आप ये बोल सकते हैं ज्वाइंट और R dash मेंबर्स। ओके, आप ये भी बोल सकते हैं एक्सटर्नल इट इज जॉइंट्स and internal it is nothing but a member. Okay, so external load, external को ही मैं बोल सकता हूँ
joint. चुप, यहाँ पे क्या आएगा? FY C CA MCD and MD, only MD. ओके, ये CA और CD क्यों लिखा मैंने? इंटरनल हिंज है इसलिए. ओके, दैट इज स्टार करके लिख सकते हैं. ये बाकी इसमें नहीं रहेगा, ओनली इट इज एन इंटरनल हिंज. ओके, सो गाइस, नाउ इट इज FYC. नीचे आ रहा -30, then it is 0, then it is 0, then it is 0. There is no moments. अगर D पे एक्सटर्नल मोमेंट रहता था तो लेना पड़ता था, C पे भी एक्सटर्नल मोमेंट रहता था तो लेना पड़ता था. लेकिन ओके, ओनली क्या है? -30. B इंटरनल, यानी आप बोल सकते हैं मेंबर लोड वेक्टर, that is F dash external, that is F dash internal. I hope so कि मैंने 4x4 मैट्रिक्स लिया है. I hope so. मुझे ऐसे लगता है, लेकिन ठीक है, बहुत दिन हो गए क्लासेस नहीं हुए. बहुत दिन नहीं, हाफ मंथ, डायरेक्टली हाफ मंथ क्लास नहीं हुआ. ठीक है, चलो. इंटरनल और मेंबर लोड वेक्टर स्पैन एक, ओके, स्पैन एक. A C. Okay. So what are the moments? अभी मोमेंट के लिए फॉर्मूला लगेगा आपको. WA cube upon 12L square. WA cube upon 12L square. 4L minus 3. Is it correct? ब्रैकेट में 4L minus 3. और A कौन सा है यहाँ पे? A है जहाँ पे यूडीएल रहता है वो A रहता है, जहाँ पे यूडीएल रहता है वो A रहता है. So that's why number AC WA cube upon 12L square. 4L minus 3. Is it correct? Anti-clockwise है, that's why positive. Please say so. Guys, आप सही में कर रहे हो ना प्रैक्टिस वगैरह? राइट, करेक्ट है ना? हाँ.
देखना ही पड़ा एक्चुअली, देखना नहीं पढ़ने को ना, इसलिए प्रैक्टिस बोल। अगर आप प्रैक्टिस बोल करोगे तो ये देखने की जरूरत ही नहीं। ओके, मेरी प्रैक्टिस नहीं है इसलिए मैं आपको पूछ रहा। ओके, आप देख के भी बताओ लगे तो कोई दिक्कत नहीं है। डब्ल्यू ए क्यू, डब्ल्यू कितना है 20, ए कितना है 2 क्यू अपॉन 12 एल स्क्वायर, 4 into 3 L minus 3 into 2 12 minus 3, what is the value? अरे पता वाला सी। This is also correct or not? अरे बताओ रे बाबा। उस राइट है। ठीक, वैल्यू इसको सांगा 8.88 फर्स्ट, 8.88 सेकंड minus 20 into 2 square by 12 into 2 square, sorry 3 square, 6 into 3 square minus 8 into 3 into 2 plus 3 into 2 square. This value is minus. मैं जानबूझ के आपको निकाल के दे रहा, इसके बाद का आपको खुद करना है, ये और ये आप खुद कर लोगे। दैट इज अ जीरो, दैट इज पार्ट। कल सुबह 8 बजे अपन लेंगे इसको पूरा सॉल्व करके फाइनल आंसर। ठीक है, ये लेक्चर में डाल दूंगा इस पर, यूट्यूब का फ्री रहेगा। 13.33 13.33। इसके सामने का आप रिएक्शंस निकालो, आपको रिएक्शंस निकालने आता है और इसका भी आप निकालो। ओके, सो हम इसके बाद का लेक्चर देखते डायरेक्टली नेक्स्ट टुमारो 8 में। सबको ज्वाइन करने के लिए बोलो, और मैं ये लेक्चर फ्री में अभी यूट्यूब पर डाल देता हूँ 15 मिनट में। ओके ओके गाइस।